Good morning, everybody. Welcome again in digital classes. And dear student, in previous video, first I am telling you this video for class 9th, okay? And we are discussing about the chapter number 3rd, that is polynomial. And in this chapter we have discussed about the types of polynomial and algebraic expressions also zeros of polynomial. But today we are taking the different topic from this chapter, okay? And in this topic, before teaching this topic, before reading this topic, everyone know that how to find the factor, because today topic is factorization of polynomial. First I am telling you, we shall discuss about the factorization of polynomials, right? Factorization of polynomials. But dear student, in previous classes we have studied about the factor, right? So according to definition of factor, we can say factor is a exact divisor. And in previous video we also discussed about the remainder theorem. Remainder theorem means we easily know that how to divide the polynomial to polynomial, right? So now we can easily find out the factor of polynomial, because in this exercise again we have need to do the divide, right? Otherwise we can direct find out the factor. How? Dear student, how to find the factor I told you in previous classes, but now I am telling you how to find the factorization of polynomials. Dear student, first one more thing, you are note down first. Suppose that Px is a polynomial. Px is a polynomial, okay? Px is a polynomial, right? And x greater than equal to 1 मीन्स x का मतलब यहाँ पे ये है, x ग्रेटर देन वैल्यू 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे जो x जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, राइट, वैल्यू है वो किसके आनी चाहिए, वेरिएबल उसकी पावर है वो 1 से ज़्यादा आनी चाहिए, राइट? x ये मान के आप चलें, ओके? डिग्री हम यहाँ पे लेके चलते हैं n डिग्री है, जो भी वेरिएबल जो भी पोलिनोमियल आता है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। इक्वल हो सकती है, 1 से इक्वल हो सकती है, जीरो ना हो, नेगेटिव में ना हो, ये आपको मैंने पहले ही बताया, ओके? स्टेप नंबर सेकंड, एंड ए इज ए रियल नंबर, और एक हम ऐसा ले लेते हैं डिजिट ए जो क्या है, रियल नंबर, राइट? Then first step first, if x minus 1 is a factor of px, then we can say px equal to of px then pa equal to 0. ये आपने पहले भी मैंने आपको बताया है, because in remainder theorem I told you sometime we have get remainder 0, right? During the division we will get the remainder 0, so we can say this polynomial is the exact divisor of this polynomial. Means you can say in multiple form, multiples, you can check in previous exercise how to check the multiples, right, the given polynomials. So same as you can easily check for factor, means the a is the real number and a is real number such that x minus is a factor of the px, then you can see if we put a value in this polynomial, so we will get 0. Next, second form, if pa equals 0, then you can say x minus a is a factor. दोनों ही कंडीशन आप दोनों नोट कर लेना, इसमें इजी है, और इसको समझाने का तरीका मैं अभी आपको और बताता हूँ। आपको शायद ये फॉर्म समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या कह रहे हैं, सर का कहने का मतलब क्या है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। नोट करें इसको, एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझें। सपोज दैट एंड ए पोलिनोमियल इज गिवन x plus 3,
इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं लीनियर पोलिनोमियल का। x प्लस 3 इज ए पोलिनोमियल, राइट। नाउ वी हैव चूज ए रियल नंबर, एक ए यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, राइट। अब हम कहेंगे कि ये रियल नंबर क्या है, इसका क्या है, फैक्टर है। फैक्टर है तो क्या कहेंगे, x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी ए इक्वल टू 0। मीन्स आप यहाँ पे p की वैल्यू जब आप क्या करते हैं, इसको आपको क्या करना है, 0 करना है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, नोट करें आप। ट्रांसफर करोगे तो x की वैल्यू कितना आएगा, -3। क्या आएगा, -3, राइट। आएगा ही नहीं आएगा। सो नाउ यू कैन से x इज इक्वल -3। सो वो a की वैल्यू क्या है, -3। a की वैल्यू क्या है, -3, और a की वैल्यू यहाँ पे -3 आप जब राइट करोगे तो आपको मिलेगा x प्लस 3। x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px, और px क्या है, x प्लस 3 है, तो राइट है, कोई दिक्कत नहीं। चेंज करके आप देखिए इस फॉर्म में पी ए इक्वल टू 0। यदि हम ए की वैल्यू क्या करते हैं, पोलिनोमियल में रखते हैं, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जैसे आपको कुछ भी दे रखी हो, मैं आपको बताता हूँ दूसरे एग्जांपल के फॉर्म में। ए की वैल्यू इसी से बता सकता था, बट डिफरेंट फॉर्म लेके देखते हैं हम एक, ठीक है। पी एक्स इज द गिवन ईयर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड हियर एक्स वैल्यू इज 1 -1 एंड 2। यह आपको मैंने दे रखी है। पिछली एक्सरसाइज, पिछली वीडियो में हमने बताया कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू। हियर वी आर ऑल्सो फाइंडिंग द वैल्यू, बट वी आर फाइंडिंग द फैक्टर, नॉट वैल्यू। मीन्स इफ वी गेट वैल्यू ऑफ पी एक्स इजिकल 0, सो वी कैन से दिस नंबर इज द पोलिनोमियल, दिस नंबर इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। फर्स्ट वी पुट 1 ऑन x, सो वी विल गेट p1। क्या मिलता है आप देखो, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, सॉल्व इट, 1 माइनस 1 प्लस 1, राइट, मीन्स 1 नॉट इक्वल टू 0, राइट है ना। एक बार चेक कर लें कहीं दिक्कत ना हो। 1 स्क्वायर 1, ओके। आप कहेंगे इफ वी पुट पी एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1, सो वी विल नॉट गेट 0। तो आप ये कह सकते हैं देन एक्स इक्वल टू 1, ओके, x इक्वल टू 1, या आप ये से कह सकते हैं जब आप इसको ट्रांसफर करते हैं तो x माइनस 1। याद रखें फैक्टर में लिए आपको क्या करना है, आपने पुट क्या किया, x इक्वल टू 1। ये अभी इसका जीरोज हम फाइंड आउट कर रहे थे, अब इसको कन्वर्ट करते हैं फैक्टर में, सो x माइनस 1 वी हैव ट्रांसफर, राइट। x माइनस 1 इज नॉट ए फैक्टर, नॉट ए फैक्टर। फैक्टर क्यों नहीं हुआ, यदि फैक्टर होता तो ये क्या होता है, एग्जैक्टली इसको क्या करता है, डिवाइड करता, और डिवाइड करने का मतलब है यहाँ पे अपने पास वैल्यू क्या आती, 0, राइट। फॉर नेक्स्ट के लिए चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है अपने पास, -1 के लिए चेक करें, पुट द वैल्यू -1 होल स्क्वायर -1 एंड +1, राइट। स्क्वायर ऑफ -1 इज 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 एंड 1, वी विल गेट 3 नॉट इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे -1 इज ऑल्सो नॉट ए फैक्टर। नाउ वी विल चेक फॉर 2। सो 2 के लिए आप चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, P2 इक्वल टू 2 स्क्वायर -2 एंड +2, 4 - 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4, मीन्स नॉट इक्वल टू 0। सो दीज आर द नॉट फैक्टर ऑफ द दिस गिवन पोलिनोमियल, राइट। अब एक डिफरेंट एग्जांपल लेके देखते हैं जिसमें आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। इस वजह से आप चेक कर सकते हैं कि द गिवन टर्म इज द फैक्टर ऑफ नॉट, राइट। गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज फैक्टर ऑफ नॉट। ये आपको मैंने चेकिंग के लिए बताया कि ये फैक्टर होता है कैसे। इफ द फैक्टर इज गिवन, सो इट मीन्स वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज बिकम 0, राइट। अनदर एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर, x स्क्वायर -5x + 6, x स्क्वायर -5x + 6, and here x value is I am giving you 2 and 3, 2 and 3, check these are the factor or not, right। ये इनके फैक्टर है या नहीं, x की वैल्यू एक बार पुट करनी है 2 और एक बार क्या करनी है आपको 3 पुट करनी है। इफ यू गेट px वैल्यू इज 0, सो इट मीन्स यू कैन से दिस इज द फैक्टर, राइट। पहले पुट करें, पहले हम पुट करते हैं x की वैल्यू 2, ओके। 2 पुट करते हैं कितना आता है,
2 square minus 5 into 2 plus 6. 2 2 जा 4 minus 10 plus 6. 10 minus 10 equal to 0. Right? क्या कहेंगे आप कहेंगे yes. Therefore x is equal to is the 0. इक्वल लगा तो 0 है, राइट है। और जैसे ही आप इसको ट्रांसफर करेंगे सो x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ px. In this way you can check the given term, the given value of variable is the factor or not. Okay, now you can put 3, okay, and check. So for 3 I am writing here. For 3, if we put 3, so 3 square minus 5 into 3 plus 6. Square of 3 is 9. 5 3 is 15 plus 6. So we will get 15 minus 15, that is equal to 0. Means same as we can say if we put p variable value means value of x is equal 3. So we will get 0. और आपको ध्यान से देखना, यदि p इक्वल टू 0 देन x माइनस ए इज द फैक्टर. नोट कर लेना. मीन्स जो वैल्यू रखते हैं उसमें साइन क्या लगाना, नेगेटिव. ओके, जबकि वेरिएबल क्या दे रखा हो, x. डिफरेंट वेरिएबल y में आ रहा है तो y माइनस ए, z आ रहा है तो z माइनस ए. राइट, नाउ यू कैन से x माइनस 3 इज ए फैक्टर. ओके स्टूडेंट्स, सो 2 टाइप्स क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे बताए. If x minus 1 is the factor of, then how to check? X minus a is the factor, so you can say value of polynomial will be 0. एक तो ये है, आपको क्वेश्चन दे रखा होता है चेक वेदर द गिवन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. ओके, ये इसके लिए मैं और बताता हूँ आपको. क्वेश्चन देखना है. फाइंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फैक्टर. मीन्स फर्स्ट in this example we have studied about that if the given terms, given values are the factors of the polynomial, so how can we say that which is the factor? Okay, means we have substitute this value of variable in the polynomial and we will get the factor. Right, now here for second type questions, okay, according to property number second, we can say if p equals 0 then x minus is a factor. Okay, that is completed. And now we will solve property first. X minus is a factor, then p equals 0. Okay, and using this theorem, using this statement, we can easily solve the example. Okay, how? First, suppose that an example is here. Find the value of x. Find the value of p if x plus 1 is the factor of polynomial px, x cube minus 2p plus 3. 2p plus 3. This is the polynomial, and here we are checking if x plus 1 is the factor of this polynomial. So what is the value of p? So we are finding here value of p. Now how to find the value? Dear student, I told you if x plus 1 means x minus is a factor of px, then p equal to 0. मीन्स यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या करनी है, आपको पॉजिटिव पुट करनी है. ओके, सो हियर वी से दैट in solution what we say, x plus 1 is the factor of px. So we can say p minus 1 should be equal to 0. अब यहाँ पे आप कहोगे सर माइनस 1 कैसे आया, राइट. आप जब इसको क्या करेंगे, x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो इसको आप इक्वल 0 करोगे और ट्रांसफर करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1. राइट, इस वजह से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे a की वैल्यू क्या लेके आनी है. राइट, अब देखें आपको लेके आनी है कि p माइनस 1 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. राइट, लुक नाउ px इज गिवन ईयर, px इज गिवन ईयर x क्यूब माइनस 2p प्लस 3.
और इसमें x की जगह क्या पुट करना है आपको, -1. सो p -1. ओके, yes, now px is equal x cube minus 2p plus 3. So we have substitute x is equal to -1. So we will get x cube minus 2p plus 3 equal to 0. Note down here, means we have put the value of x here. So -1 cube minus 2p plus 3, right? Now solve it. Cube of -1 is -1. Why? Because -1 into -1 into -1. I told you in exponent term. Okay. So we will get negative sign, and 1 into 1 into 1 we will get 1. Okay. So that's why cube of -1 is -1. Now minus 2p plus 3. So p -1 should be equal to 0. So we put here 0, right? Okay. Now solve it. 0 equal to -1 and plus 3. So we will get 2 minus 2p. Okay. Now transfer the term and find out the value. So we will get 2 minus 2p equal to 0. 2 is equal, 2p is equal 2, and p value is equal to 2 upon 2 equal to 1. So for the value p equal 1, we can say x plus 1 is the factor of the given polynomial. Using this example, you can solve such type of examples related to your book. Okay, right? Now how to factorize the quadratic form, quadratic polynomials. Okay students, now I am telling you separately. Okay, so using this way, note down these two things. These are very important. If x minus 1 is the factor of px, then you can say p equal to 0, and p equal to 0, then you can say x minus 1 is the factor, right? Now we have find the factorization of the polynomial, and which type of polynomial is given here? Quadratic equation. Quadratic equations, quadratic polynomials. Okay, how to factorize the quadratic polynomials? So here the one basic method. In this video we shall factor. Okay, factor the quadratic polynomial using the splitting the middle term, and in next videos, okay, using the algebraic identity we can easily find out the factorization of the quadratic polynomials. But the difference between them is, I will tell you one by one what is the difference, okay, between these methods. Now which method we are studying about here? Splitting method. Splitting the middle term means, आपको splitting का मतलब यहाँ पे ये मान के चलना है कि आपको जो middle term दे रखी है उसको क्या करना है, ब्रेक करना है. क्या करना है? ब्रेक करना है. ओके, you know that quadratic, in a previous video when I discussed about the introduction of polynomials and algebraic expressions, I told you the standard form of quadratic equation or polynomial is ax square plus bx plus c equal to 0. This is the standard form of equation, quadratic equation, and here middle term is bx. Middle term is bx. So in this method we will break this term in two parts, right? हम इस term को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, और कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, नोट करें इस चीज़ को. स्प्लिटिंग मेथड का हम यूज कैसे करते हैं, एग्जाम्पल लेके चलें. इजी सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42, दिस इज द पोलिनोमियल. ओके, एंड यूजिंग दिस पोलिनोमियल, दिस we are finding the factor of this polynomial, right? So using the splitting method, how to find the factor? First, by compare, okay, compare the given polynomial. अब यहाँ पे आप पोलिनोमियल राइट करें,
तो अच्छा है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल राइट करें तो और अच्छी बात है, ठीक है। कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट करें आप इस चीज़ को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से ही आपको बहुत सारे मेथड आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। हाउ टू फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यूजिंग द स्प्लिटिंग मेथड, ये नोट करते चलें आप वन बाय वन। स्टेप फर्स्ट, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आई टोल्ड यू विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दिस। सो हियर वी आर कंपेयरिंग, आपको इन दोनों का क्या करना है, कंपेयर करना है। अब कंपेयर भी किसका करना है, नोट करें इसमें, कंपेयर द कोफिशिएंट, यहाँ पे नोट कर सकते हैं, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, कोफिशिएंट। अब नोट करें, a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant, right? Now after the comparison what we will get, now you write here, after the comparison we will get a value is here, what is the coefficient of x square here, check and tell me. Here 1 is the coefficient because normal term is multiplied by x square, right? 1 is multiplied, okay, 1 into x square equal to x square, so we can say 1 is the coefficient of x square, okay students. Now next term bx, so coefficient of bx, which term is here, b, so b value is here -1, why, because minus x equal to minus into x, right? So here b value is -1, note down. And c represent here constant, right? So value of constant is here, look here, constant is given here positive, right? And here constant is given negative, so you can write here -42, okay student. Now this is very important for the splitting method. Compare the coefficient of the quadratic polynomials one by one. So what we will get, a equal 1, b equal to -1 and c equal to -42. स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड क्या कहती है वो नोट करें आप। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट, इन दोनों का आपको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करते हैं तो देखो क्या आएगा, 1 इंटू -42, 1 इंटू -42 आपको क्या मिलेगा, -42, एंड b वैल्यू इज हियर, b की वैल्यू क्या है, -1, सो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे, -1, डन, ओके। स्टेप नंबर थर्ड, इतना आपने काम कर लिया। नाउ थिंक द टू नंबर थिंग, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस स्टेप इज डिपेंड ऑन योर माइंड कि हाउ यू आर थिंकिंग, आप कैसे सोचते हैं, आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दैट, ओके, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। सिचुएशन क्या करिए, नाउ लिसन केयरफुली, फाइंड टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज 42 एंड सम इज -1, आप ऐसे दो टर्म्स निकालें, दो नंबर्स चूज करना है जिनका प्रोडक्ट तो आपके -42 आता है और सम कितना आता है, -1 आता है। अब यहाँ पे आपके कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया कि ऐसी कौन सी दो टर्म हो सकती है जिनका प्रोडक्ट तो -42 आता है और सम -1 आता है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है कैसे। डियर स्टूडेंट, नाउ यू हैव फाइंड द फैक्टर ऑफ 42 बिकॉज हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, सो हियर यू हैव फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ ओनली 42, नेगेटिव साइन को आप एक बार छोड़ सकते हैं। 42 के हम फैक्टर निकालते हैं, सो मीन्स बाय विच नंबर 42 इज डिविजिबल एग्जैक्टली, ओके, सो हियर वी आर फाइंडिंग 1 इंटू 42, 2 इंटू 26, okay, 21, 3 into 7, right, sorry, 14, and next number is 6 into 7,
ओके, दीज आर द फैक्टर्स। मीन्स 1 का डिवाइड होता है, 2 का डिवाइड भी होता है, 3 का भी होता है, 6 का भी होता है, 7 का होता है, 14 का होता है, 21 का होता है, 42 का होता है। सो ये सब टोटल मिला के कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर हो गए। ये आपने सोच लिया। नाउ चूज वन ऑफ देम, इनमें से एक चूज करना आपको। कैसे? इनमें से एक का ही प्रोडक्ट क्या आएगा? -42 आएगा। प्रोडक्ट तो सबका 42 आ रहा है, माइनस पॉजिटिव आया, नेगेटिव वो बाद की बात करेंगे। प्रोडक्ट सबका 42 आ रहा है, बट सम कितना आना चाहिए? -1। सो डियर स्टूडेंट, नाउ यू कैन चेक हाउ व्हेन वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, टू इंटीजर्स ए, आप 2 इंटीजर्स ले लें P एंड Q, एंड प्रोडक्ट इज PQ। इफ product in the product, if the negative sign means you can think here maybe P negative and Q positive, then we get product negative. Otherwise P positive and Q negative, then we will get product negative PQ। दो ही कंडीशन आपके पास, या तो P नेगेटिव होगा, Q पॉजिटिव होगा, तब प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, या P पॉजिटिव होगा और Q नेगेटिव होगा, तब जाके प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। राइट? इन दो कंडीशंस में से आपको एक कंडीशन क्या करनी है? चूज करनी है, और सबको साइन लगाना है। बट नोट करें साथ साथ में, इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो सम किस में आना चाहिए? नेगेटिव में आना चाहिए। मीन्स आपको ये भी पता दिया जाता है कि नेगेटिव सम आने का मतलब आपके पास सेम 2 इंटीजर्स हैं, एक नेगेटिव P है या पॉजिटिव Q, या P पॉजिटिव है और Q नेगेटिव है। सम नेगेटिव आता है, सम क्या आता है उनका? नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव साइन जिसका बड़ा होगा, जो लार्ज नंबर होगा, वो ही क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मीन्स आपको नेगेटिव साइन किस पे रखना है? लार्ज नंबर पे क्या लगाना है? नेगेटिव साइन रखना है। थोड़ा मैं लार्ज फॉर्म में बता रहा हूँ, डीपली आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। राइट? बहुत सारे लड़के हैं स्प्लिटिंग मेथड नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोचते नहीं कि करना क्या है। इस वे से आप सोच सकते हैं। राइट? अब यहाँ पे देखो, आपने नोट किया, एक एक के साइन आप पुट करते चलें, चेक करें। सपोज दैट आपने लार्ज नंबर आपने ले लिया यहाँ पे 42, इसके नेगेटिव साइन लगा दिया। प्रोडक्ट आपकी कितना आ गया? -42। बट जब आपने सम किया तो कितना आ रहा है? -41। मीन्स ये फैक्टर तो अपने काम के नहीं है। ओके, फॉर नेक्स्ट, लार्ज नंबर को नेगेटिव साइन लगा देते हैं, प्रोडक्ट किया -42, बट सम करते हैं, कितना आ रहा है? -19। तो ये भी अपने काम का नहीं। राइट? नाउ चूज नेक्स्ट, -14 आपने फिर प्रोडक्ट किया, -42 आ रहा है, बट सम करेंगे तो कितना आएगा? -11। तो ये भी अपनी कोई काम का नहीं। ओके, एंड फॉर लास्ट -7 एंड 6, तो प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है? -42, और सम करते हैं तो कितना आता है? -1। सो इट इज द रिक्वायर्ड फैक्टर, रिक्वायर्ड नंबर्स। राइट? दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स फॉर दिस। राइट? सो वी हैव थिंक 2 नंबर विच इज 6 and -7, and now you can start your factorization। okay, ये स्टेप्स आपको रफ वर्क होते हैं। ये जो मैंने स्टेप्स बताए, कंपैरिजन करना आपका रफ वर्क है, इनको नोट करने की आवश्यकता नहीं है कि जस्ट आप राइट कर सकते हैं। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपने ये नोट किया, एंड नाउ यू स्टार्ट योर सॉल्यूशन। नो नीड टू राइट दिस इन द सॉल्यूशन, you have just think it and put the solution. Right? Now we are starting our solution. How to factorize? Dear student, question is here, x square minus x minus 42, x square minus, look here we are breaking the second term, means splitting the middle term. So middle term को आपने दो टर्म में डिवाइड किया, किसमें? -7 और 6. So write here -7x plus 6x. अब कुछ लड़के कहेंगे सर आपने लार्ज नंबर को इधर पहले लिखा है, किस वे में लिखें? किसी भी फॉर्म में लिखें, नेगेटिव इसको पहले लिखें या फिर इसको पहले लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट? आप देखो इनका दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा? -x आएगा। ओके, एंड -42। डियर स्टूडेंट, नाउ फॉर नेक्स्ट स्टेप, मेक द पेयर एंड टेक द कॉमन पार्ट। इनका पेयर बनाएं और कॉमन जो टर्म आ रही है उसको आपको क्या करना है? चूज करना है। सो ये कॉमन टर्म इज x एंड रिमेनिंग वैल्यू इज x plus 6. हाउ टू टेक द कॉमन पार्ट? कॉमन पार्ट का मतलब है आपको इन दोनों में से वो टर्म चूज करनी है जो दोनों में सिमिलर आती है और उसी का डिवाइड देना है। कॉमन पार्ट का मतलब मीन्स हियर वी डिवाइडिंग बाई x बोथ नंबर्स। सो x का डिवाइड किया, कितना आ गया? x
6x में x का डिवाइड किया कितना आ गया 6. डन. नाउ टेक द साइन. वी साइन इज हियर नेगेटिव, और नेगेटिव साइन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं. नोट कर लेना यहाँ पे नेगेटिव साइन आप कॉमन लेते हैं और साथ में देखो कौन सा टर्म कॉमन ले रहे हैं. 7x और 42 में से कॉमन क्या आ रहा है 7. सो 7. नाउ मीन्स हमने कॉमन क्या लिया है 7x. सो 7x का आपको 7 का डिवाइड देना है. सॉरी 7 का -7 का डिवाइड दोगे तो -2 माइनस प्लस 7 to 7 1. सो रिमेनिंग वैल्यू इज x. नाउ नेक्स्ट माइनस डिवाइडेड बाई माइनस प्लस 7 42 डिवाइड बाई 7 6 टाइम. सो प्लस 6. याद रखें इसी वे में ही आपको स्प्लिटिंग मेथड का यूज करना है. नाउ यूजिंग दीज टू टर्म्स विच टर्म इज कॉमन हियर. सिमिलरली वी कैन से x plus 6 in both terms. So we can again take the common x plus 6 and remaining value we put here. Which term is here remaining? X, sine, negative and 7. So it is your solution and you can say x plus 6 and x minus 7 are the factors of the quadratic equation. I hope you are getting all the points and note down these things and try to solve exercise 2.3 जो भी आपके आती है 2.4. okay, so in this video we shall learn about the factorization of polynomial, how to factor and properties of factorization, right? And in next video, okay, we shall learn the different type of factorization again using the algebraic identities. Okay student, thank you for watching.